Okay, so in the previous lecture, last week's lecture, we have studied about uh, properties of quadrilateral, the terminologies of parts of quadrilateral, the relationship between sides and angles of quadrilaterals, angle sum property of a quadrilateral, then different types of quadrilateral and their properties, parallelogram. There are three types of parallelograms: rectangle, rhombus, and square. And parallelogram itself is a quadrilateral. Then there is kite, and then there are trapeziums. Okay, so we are going to focus on the types of parallelograms in this chapter. Okay, so let's start with some basic questions of quadrilaterals. Today we will finish this chapter. We will complete this chapter. अच्छा, मुझे सब ये जानना है कि the students who has this NCERT books, do they have construction of quadrilaterals also in this part? Is construction of quadrilateral included in this chapter in NCERT syllabus? Yeah, maybe somebody has, so they can check and let me know. Okay, you can let me know later. If it is difficult, no problem, leave it. Let's start with some simple questions. Three angles of a quadrilateral are 54 degree, 80 degree and 116 degrees. Find the measure of the fourth angle. Very easy question based on the property of angle sum property of a quadrilateral. Okay, we know that sum of all the four angles is 360 degrees. Okay, so please note it down with me, let the fourth angle be x degrees. Let the fourth angle be x degrees. So 54 plus 80 plus 116 plus 116 plus x is equal to 360 degree. Write this statement and write the reason as angles sum property. Angles sum property. Okay, now this is linear equation in one variable. क्या करना है तुमको? You need to add all these angles. You need to add all these angles. और इन तीनों का जो सम है उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो. You will get the value of x. Just let me know the value of x. Let me know the value of x. Okay, we have got one answer, 110. Let's wait for some other answer, some confirmation. Okay, so we have got two answers. I think 110 should be the correct option. 110 degrees. Let's check the answer. Yes, it is correct. Very good. Okay, so this was an easy one. Let's do the next one. Four angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. Find the angles. जब भी ratio दिया है, remember this method. You can take the four angles as let the four angles be 2x, 3x, 5x and 8x respectively. 2x, 3x, 5x and 8x respectively. Okay, so these are the four angles. Now sum of all these four angles, 2x plus 3x plus 5x plus 8x, will be equal to
360 degree. Y, angles sum property. Add all the angles, equate it to 360, find the value of x, and then I will tell you what to do. First you find the value of x because the question will not be complete. After that we have to do substitution, and then I'll tell you. So 342. Sorry? So 342. The value of x? Yes. No. No. You've done some silly mistake in calculation. Sir, x is equals to 20. Very good. X is equal to 20. You know why, Siddharth? Siddharth. 2x plus 3x 5x plus 5x 10x plus 8x 18x. 18x को जब 360 से इक्वेट करते हो, so 18 goes on the other side and gets divided. ऑपरेशन को डिवाइड करना है, तुमने माइनस कर दिया. This is lack of practice of linear equations. Despite my continuous intimation to you कि please practice करो, you are not doing it. So the correct answer is 20. Now what? Therefore, the angles will be 2x, that is 2 times 20, 2 times 20 which is 40. ठीक है. 3x इसका मतलब है 60, 3 into 20, 5x मतलब 100 and 8x मतलब 160. So these are the angles: 40, 60, 100, 160. Okay, so whenever the ratios of angles are given, you have to solve in this manner. Remember it. I hope you all are noting it down, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा होमवर्क आने वाला है, and if you are not noting it down, you will be struggling. ठीक है. सो मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है यहाँ पे. जब मैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ लिख के, तो तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना है. अगर तुम पीछे रह जाते हो तो तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव करो. अगर कुछ भी रह जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो में जब पोस्ट करूँगा तभी नोट डाउन कर लो उसको. ठीक है. बट आई हैव लिमिटेड टाइम एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी डन. सो प्लीज़ कीप अप विथ मी एंड कीप नोटिंग डाउन. सब कुछ साथ में होना चाहिए. सुनना है, देखना है, नोट डाउन करना है, समझना है, आंसर भी देना है. Let's go to the next question. The measure of two angles of a quadrilateral are 115 and 45 degree. The other two angles are equal. Find the measure of each equal angle of the quadrilateral. So लिखेंगे let each equal angle be x degree. ठीक है. दो इक्वल एंगल है, दोनों को हमने x ले लिया. सो 115 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 360. एंगल्स सम प्रॉपर्टी. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ढूंढो. दैट्स इट. द आंसर विल बी देयर. X is equals to 100. Very good. X is equal to 100. Okay, so each equal angle of the quadrilateral is 100 degrees.
Okay, let's move. Small part. There is this exercise over here. Can you please do this question with me over here right now so that you don't have to do it in the homework? Chalo, I'll ask one by one. First, Tanish. Tanish, a quadrilateral has dash Yes. sides. Sir, 6. ये कौन सा मतलब एलियन Five. क्वाड्रिलैटरल? हाँ, 5. 5? क्या बोल रहा है ये शुभ? Sir, 4. 4 sides. सही है ना? वी आर ऑन द सेम पेज. क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ रहे थे मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम. तनुष, अ क्वाड्रिलैटरल हैज डैश एंगल्स. 4. Siddharth, a quadrilateral has dash vertices, no three of which are dash. Wow, very nice question. A quadrilateral has dash vertices. Vertices कितने होते हैं पहले ये बता. What are vertices? पहले ये पता है क्या तेरे को? So, 4. वेरी गुड, 4 vertices. Vertices वो पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके हम लोग बनाते हैं क्वाड्रिलैटरल. नो 3 ऑफ देम आर डैश. No 3 of which are dash. राशि. कोलीनियर. कोलीनियर मतलब एक लाइन में नहीं हो सकते कोई भी 3 वर्टाइसेस, नहीं तो क्वाड्रिलैटरल बनेगा ही नहीं ना, ट्राइंगल बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट. आरवी, अ क्वाड्रिलैटरल हैज डैश डायगोनल्स. वेरी गुड. तनिष, कहाँ चला गया तनिष? Yes, sir. A diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two dash vertices of quadrilateral. A diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two dash vertices of the quadrilateral. इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? सिद्धार्थ, So, opposite. very good. Opposite vertices. The sum of the angles of quadrilateral is 360. 360. ओके. लेट्स गो अहेड. ये तुम्हारा होमवर्क है, बाकी के क्वेश्चंस इसमें से. ठीक है. नेक्स्ट, द क्वेश्चंस अबाउट पैरेललोग्राम्स एंड टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स. Two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 2:3. Find the measure of each of its angles. देखो, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स के बारे में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी. कैन एनीवन टेल मी दिस प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी, द रिलेशनशिप बिटवीन द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. व्हाट इज द रिलेशनशिप? मैंने बोला था लर्न करो. शुभ पेज घुमा रहा है अभी. मैंने लर्न करने के लिए बोला था लास्ट वीक ही, कल भी बोला था, रिमाइंडर दिया था मैंने. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, just a moment. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. ठीक है. देखो, let the adjacent angles be 2x and 3x. So 2x plus 3x is equal to 180 डिग्री. इधर ये रीज़न जो मैंने ऊपर लिखा ना वो लिखना. कौन सा रीज़न? ये वाला. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है.
So x is equal to 180 divided by 5. So x is equal to 36 degree. ठीक है. Therefore the adjacent angles will become therefore the adjacent angles will become 2x, which is 2 into 36, which is 72 degrees, and 3x, which is 3 into 36, which is 108 degrees. ठीक है, दो एंगल मिल गए. अब हमें मेजर ऑफ ईच एंगल निकालना है. Therefore remaining two angles will also be, बाकी के दो एंगल भी कितने होंगे? 72 डिग्रीज एंड 108 डिग्रीज. क्यों ऐसा होगा? रिमेनिंग टू एंगल्स 72 और 108 क्यों होंगे? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये 72 डिग्री है और ये उसका एडजेसेंट एंगल है 108 डिग्री. तो 72 के सामने ये वाला एंगल कितना होगा? 72, और ये 108. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. सो एडजेसेंट एंगल्स तो दो मिल गए, बाकी के दो एंगल भी वही होंगे बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Please note it down properly. सर, Yes. जो आखिरी स्टेटमेंट है, रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी 72 एंड 108 डिग्रीज, वो मतलब इट कैन बी रिटन, जरूरी नहीं है कि वो ऑपोजिट एंगल्स हो. तो ऐसा लिख सकते हैं, रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी 72 degrees, which will be oppositely diagonal to another 72. हाँ, मतलब या तो तुम पैरेललोग्राम का फिगर बना के उसमें दिखा सकते हो, दैट एंगल ABCD नाम दे के, वो बेस्ट रहेगा. क्योंकि यहाँ पे वो लोग ने भी वैसे ही किया है. मैंने पैरेललोग्राम को नाम नहीं दिया है. सो उन्होंने कैसे बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स. टोटल एंगल मुझे पता है 4 है, जिसमें से दो एंगल मैंने ढूंढे 72 और 108, बाकी के दो एंगल 72 एंड 108. उसका पोजीशन नहीं पूछा है. वेयर आर दीज टू एंगल्स, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दीज एंगल्स विद द अबव एंगल्स. इसलिए मैंने सिर्फ एंगल्स के मेजरमेंट लिख के छोड़ दिया है. But if you want, you can name the figure like this and you can write the final answer how they have shown over here. 72 108 72 108. है ना? It's not much of a difference. चलो, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है तुमको. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which angle A is 75. Find the measure of each of the angles B, C and D. शुभ, सबसे पहले तुम्हारे लिए कौन सा एंगल ढूंढना इजी होगा? बी, सी और डी में से सबसे इजी एंगल कौन सा है ढूंढने के लिए, जिसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन आ जाएगा. ओके, वेरी नाइस. सिद्धार्थ, तनिष एंड राशि आर रेजिंग हैंड्स. यस शुभ.
बी नहीं, बी में तो कैलकुलेशन लगेगा ना, इजी इजी वाला सबसे। ये सर सी क्यों क्यों? एडजेक्ट अपोजिट कितना होगा एंगल सी, कितना होगा? 75 वेरी गुड। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे करके रीजन दे दो। सर फिर हम ऐसे स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी therefore 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 वैसे भी कर सकते हो, या तो फिर और एक तरीका है, तुम ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे एक स्टेटमेंट डाल दो। अब a तो 75 है, b मुझे नहीं पता है, दोनों का सम 180, तो b हो जाएगा 180 माइनस 75, सो b हो जाएगा 105। तो b 105 हो गया, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, दोनों इक्वल हो जाएंगे 105। वाई? बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे एंगल मिल गए, एंगल ए और सी मिल गए, ए तो दिया ही था खैर, और बी और डी मिल गए। राइट, नोट इट डाउन प्लीज। राशि, तेरे पास एनसीईआरटी है क्या? कहाँ पे तेरे पास है? अभी है? ऊपर रख दी है क्या? अंदर खड़ी है। अंदर अंदर लॉक लॉक करके रख दी ताकि कोई चोरी ना कर ले। नहीं, एक्चुअली तो मैं हॉल में बैठती हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, नहीं, इफ इट इज इजी फॉर यू टू टेक इट देन ओनली यू टेक इट। नहीं, कहीं मतलब पता नहीं कोई कॉम्बिनेशन लॉक खोल के हेस्ट, मनी हेस्ट जैसा कुछ करना पड़ेगा तो मत करना। सर डन ओके, इजी राइट, लेट्स डू सम ट्रिकी वंस। अभी तक आया नहीं, आएगा। Yeah, this is also simple. Wait, चलो तुम लोग एनालाइज करो इसको, तुम लोग एनालाइज करो, क्वेश्चन पढ़ो, एनालाइज करो। ग्रेट। राशि, एक इन द मीन वेल जस्ट चेक इट आउट के इसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में डू वी हैव कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो और इट इज सेपरेट? sir can I just say what we have to do? Yes. Sir, first we'll take the diagonal of A, which will give us C, and which will be 75 degrees. One Then second, we'll one take second. Uh, you're saying uh, you're saying we'll draw a diagonal. What you're saying? No, I mean opposite to it. Like angle A Oh, opposite angle C oh will be yes. 70. Okay, Divided. okay, okay. So you want Then to angles okay, let me write it. Let me write it. Angle A is equal to angle C is equal to 75 degree opposite angles of parallelogram. Okay, so let me show it over here. This is yes, Rashi. सर जो हमारे बुक में है ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, उसमें नहीं है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। Practical geometry. Okay, so in your school they have not started with practical geometry, right? नो, नॉट येट। Okay, okay, okay. We'll discuss about what to do next, but first let's focus on this question. So here ABCD is a parallelogram in which angle BAD or angle A is given,
Angle DBC is given, which is an angle made between a diagonal and a side of a parallelogram. We have to calculate angle CDB. Let me just show you where is CDB. It is over here. And angle ADB. Angle ADB is over here. Okay, great. So what Tanush told me that we can first find angle C which will be equal to angle A because they are opposite angles of parallelogram, and I completely agree with him. ठीक है, यहाँ तक तो तनुष ने बताया. इसके आगे किसी को आइडिया आ रहा है? आई थिंक तनुष इज हिंटिंग टूवर्ड्स फाइंडिंग दिस एंगल सी डी बी. Yes. तो आराम से आ जाएगा. प्लीज वेट तनुष, लेट समबडी एल्स. आई थिंक आरवी को भी आइडिया आ गया है. क्यों नहीं आ गया? क्यों नहीं आ गया? क्यों नहीं आया आइडिया? बहुत इजी है यार, अब तो हो गया. एक एंगल ढूंढना है. यस सिद्धार्थ. So it will be 60 degree angle D. नो नो नो. राशि नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? यस तनुष. Sir, then line CDB will become angle CDB will become a triangle. Yeah, so we will consider CDB will become a triangle CDB, right? In triangle CDB, angle CDB plus angle CBD plus angle DCB CD. और BCD is equal to 180 degree. One. भूल गए सब लोग? Angle sum property. Angle sum property of a triangle. In a triangle, the sum of all interior angles is 180 degree. Angle sum property of a triangle. ठीक है. CDB I don't know. CBD is 60. DCB is 75. The sum is 180. CDB is equal to 180 minus how much it will be? 135. So angle CDB will be equal to 45 degrees, right? Will it be 45? Correct. Sir, next should I say? वो तो बहुत एक ही स्टेप में हो जाएगा नहीं? Next I know, sir. You know it, right? Anybody else? How to find angle ADB, this angle? Anyone? Only Tanush is answering. शुभ, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? Okay, before Tanush answers this directly, I would like to give a hint to everyone. अगर तुमने लाइन्स एंड एंगल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 7th में, तो यू मस्ट बी नोइंग वॉट अ जेड फॉर्म्स. जेड क्या बनाता है? जेड. और ख़ास करके जब जेड के जो दो ऊपर और नीचे वाले जो लाइंस होते हैं, अगर वो पैरेलल हो, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स है उनको क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया आ रहा है? यार बेसिक ज्योमेट्री भूल के आते हो यार तुम लोग. कौन से इंटीरियर एंगल? विच? वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और सो वो equal होते हैं, they are conjuncting a parallel line or intersecting a parallel line. so when a transversal cuts two parallel lines, यहाँ पे transversal BD है, BD दोनों parallel line को कट कर रहा है, तो it makes two alternate interior angles which are on either side of the transversal with both the parallel lines and they are equal. ठीक है, तो angle ADB will be equal to angle CBD will be equal to 60 degree. Why? Because they are alternate interior angles. Alternate interior angles. ADB, angle ADB is equal to angle CBD is equal to 60 degree. Alternate interior angles.
समझ में आया क्या सबको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विजुअलाइज करना सीखो। शुभ, तुमने पढ़ा है पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में? क्या बात कर रहे हो यार, 7th स्टैंडर्ड कैसे पास किया तुमने? हाँ, ये तो ऑनलाइन पास किया हुआ है, इसलिए तो नहीं पता है तुमको। ज़रा यहाँ पे देखो सब लोग, ये ना ये ऐसा ये करो मत, तुम बहुत फंस जाओगे आगे जाके। आई विल शो यू, जिसको भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का नॉलेज नहीं है वो प्लीज़ यहाँ पे देखो। अगर ऐसे दो लाइंस है जो पैरेलल है और उसको एक लाइन काट रही है, जो हमेशा पैरेललोग्राम में होता है, पैरेललोग्राम में कोई भी दो साइड पैरेलल है और डायगोनल दोनों को कट कर रहा है, ठीक है? या फिर कोई भी साइड कट करती है पैरेललोग्राम में, बताता हूँ मैं, पहले ये समझो। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। तो 1 विल बी इक्वल टू 5, 2 विल बी इक्वल टू 6, 3 will be equal to 7 and 4 will be equal to 8। कोई बता सकता है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये जो 1 है, why is it equal to 5? 2 6 से क्यों इक्वल है? 3 7 से क्यों इक्वल है? 4 8 से क्यों इक्वल है? यू नो व्हाट आर दे नोन एज? बोलो बोलो अनम्यूट करके। व्हाट आर दे नोन एज? इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, ये किसी को पता है क्या ये 1 और 2 को क्या बोलते हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2, व्हाट आर दे नोन एज? 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3, 1 and 4, what are they known as? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब उनका सम 180 होता है। अच्छा, कोई जानता है ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है, इनको क्या बोलते हैं? व्हाट आर दे नोन एज? What are they known as? 1 and 3, 2 and 4. Yes, Shubh. Opposite angle. Vertically opposite angles. Vertically opposite angle. तुम लोग का ये बेसिक ज्योमेट्री क्यों इतना वीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट इज़ लाइक क्रेजी यार, मतलब इतना भी नॉलेज, बहुत बेसिक नॉलेज है ये सब। इसके सिवा मैं पैरेललोग्राम कैसे पढ़ाऊँगा अगर ये सब नहीं पता है तो? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस देता हूँ, उसमें ये सब बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इसको एक बार इसका नोट्स बना के थोड़ा रीड करो, नहीं तो तुम लोग ना नेक्स्ट ईयर फंस जाओगे 9th में। विदाउट दिस नॉलेज यू कैनॉट सर्वाइव इन मैथमेटिक्स, खास करके ज्योमेट्री में। और नेक्स्ट ईयर तो 9th पूरा ज्योमेट्री बेस्ड है। सो अभी मैं ये सब डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जो बता रहा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो यहाँ पे देखो, एंगल 3 एंड एंगल 5। Angle 3 and 5 are alternate interior angles. Angle 4 and 6 are alternate interior angles, जो हमेशा इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। सो ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ भी बन रही है, क्योंकि पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बना है। इसके लिए वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है एंगल ADB ढूंढने के लिए। ये देखो, वो लोग ने भी तो लिखा है यहाँ पे। तो 8th स्टैंडर्ड में विदाउट टीचिंग पैरेलल लाइंस, हाउ विल दे गिव यू दीज प्रॉपर्टीज? बिकॉज दे हैव टॉट यू इन 7th एंड यू गाइज फॉरगेट इट वेरी इजीली, एफर्टलेसली। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक पैरेललोग्राम दिया है, ये टफ हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि डायगोनल्स दोनों बनाए हैं। एंगल CAD 40 है, एंगल CAB 35 है, एंगल COD 65 है। You have to find angle ABD. Let me mark these angles. Angle ABD. Angle ABD is over here. Angle BDC. BDC is over here. Angle ACB. Angle ACB is over here.
and angle CBD, angle CBD is over here. ये सारे एंगल्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है। चलो बहुत इजी है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे बताओ? Who can tell me first where to begin from? सबसे पहले वो लोग ने ABD पूछा है ना। Let's find ABD only first. How to find ABD? Who can show me the map? कि पहले आप ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज सी क्या होता है ज्योमेट्री में, इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग तुम्हें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हें कहीं ट्रैवल करना है तो तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, मैप पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे। सो बिफोर फाइंडिंग ABD यू शुड नो कि पहले क्या करना है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, कैसे ढूंढना है। सो आई विल गिव यू अ हिंट, ठीक है। आई विल गिव यू अ हिंट इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट। कंसिडर दिस ट्राइंगल। डू यू सी अ ट्राइंगल AOB? ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमें मिल जाएगा एंगल ABD। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी एंगल AOB कितना होगा, ये वाला एंगल? हाउ मच विल इट बी? AOB Sir, 65 degree. very good, 65 degree. Can you tell me a reason? Sir, because they are opposite. Vertically opposite angles क्या बोलेंगे? तो कैसे लिखना, कैसे है देखो, इन ट्राइंगल AOB लिखो, इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB is equal to angle COD which is equal to 65 degrees. Vertically opposite angles. अरे मैंने सुना APJ में चैप्टर खत्म हो गया स्कूल में। तुम लोग की हालत खराब है फिर। क्या ऑनलाइन स्टडी हो रहा है तुम्हारे स्कूल में? कोई नई टीचर है क्या जिसको पढ़ाना नहीं आता? ऐसी है क्या बात? आई एम नॉट लाइकिंग इट। AOB is equal to COD which is 65 degree, ठीक है। also angle AOB plus angle OAB plus angle OBA plus angle OBA is equal to 180 degree. Angles sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो एंगल AOB 65 है, एंगल OAB 35 है, एंगल OBA वी डू नॉट नो। Can you please solve this equation and find angle OBA? Yes. Correct. It is 80 degrees. 65 plus 35 100. 180 minus 100 will be 80. क्या हुआ शोभ, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? सर जो अभी आपने बोला ना 65 प्लस, अरे बेटा ये इक्वेशन सॉल्व किया है मैंने। 65 प्लस 35 कितना होता है?
100 होता है। कितना होता है? 100। ये 100 वो साइड जाके 180 से माइनस हो जाएगा ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है ये भी, राइट? ओके, यहाँ तक समझा सबको? वी गॉट आर एंगल। हमें कौन सा एंगल ढूंढना था? ए बी डी। ए बी डी और ओ बी ए एक ही एंगल है, ठीक है? सो ऐसे नीचे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। Okay, now see this, angle ABD is equal to angle BDC is equal to 80 डिग्री। एंगल ABD और एंगल BDC इक्वल है। Why? अब भी सिखाया मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी यूज की थी। एनीवन एक्सेप्ट राशि एंड तनुष। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है क्या? Why angle ABD is equal to angle BDC? एंगल ABD ये वाला एंगल है और एंगल BDC ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? Why they both are equal to 80 degree? Why are they both equal? What is the name of these pair of angles? Alternate interior angles formed between two parallel lines are always equal, ठीक है? So ABD is equal to BDC. Very good. और क्या ढूंढना है अपने को? ACB। ACB बहुत इजी है। Sir, 40 degree. Okay, can you tell me why? Sir, because line AC is parallel to AB and line AC is a transversal lines angle ABC. No, सीधा बोल सकते हो तुम, इतना सब एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल जो अभी मैंने दिखाया है, alternate with angle. या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन। बट अब लाइंस जो पैरेलल होगी दैट इज AD एंड BC। AD एंड BC विल बी द पैरेलल लाइंस। डू यू सी द Z फॉर्मिंग? ये जब Z बनता है ना, तो Z के जो दो कोने होते हैं उसके अंदर वाले जो एंगल होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, बट इफ द लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली लाइंस तो पैरेलल होगी, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल होगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है? सो सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB विच इज 40 डिग्री। और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? सो वी फाउंड दिस एंगल ऑल्सो। कितना आया था ये वाला एंगल? 80, करेक्ट। ये वाला भी एंगल मिल गया हमें 80, ये वाला भी एंगल मिल गया हमें। कितना आया ये एंगल? 40। What is the last thing to be found? CBD, that is this angle. चलो, anyone? CBD.
बहुत सारे वेज से हम ये सी बी डी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड एंगल सी बी डी विथ डिफरेंट वेज. आई जस्ट वॉन्ट वन वे. Okay, I will tell you the easiest way. Can you find this angle? Angle COB? If you can find, please tell me how you can find. COB. Poor, pathetic level of geometry you are exhibiting. ये जो भी वीडियो देखेगा ना यूट्यूब पे हंसेगा वो तुम लोग के ऊपर. तनुष तू तो यार इज्जत बचा ले तेरे बैच की. तेरा वॉइस क्यों लो हो गया? कैन एनीवन एल्स स्पीक? मेरे को सुनना है तुम लोग का आवाज़. ठीक है ना? हेलो हेलो. अरे यार तुम्हारा आवाज़ सुनना है मुझे. या तनुष कैन यू प्लीज एडजस्ट योर माइक? आई कांट हियर यू. But am I audible now? Yeah, you are audible better than before. Better than before. Yes, तनुष तेरे बैच की इज्जत तेरे हाथ में है. तेरे बैच की नाक कटने से तेरे को रोकनी होगी आज. एंगल COB कैसे ढूंढेंगे? COB. One 125 degrees. How did you find it? So line EC is a 180 degree line. AC or BD? Yes, sir. I took AC. Okay, you can you simply say that angle COD plus angle COB is equal to 180 degree because they are linear pair, है ना? They are the angles in a linear pair. So COD is 65, COB I don't know, right? So not 125, you are wrong. So COB is equal to 180 minus 65, which is 115. So this angle is 115, angle COB. Now in triangle COB, angle COB plus angle OCB plus angle OBC is equal to 180 degree. Angle COB is 115. Angle OCB is 40. Angle OBC we don't know, and their sum is 180 degree. So this will be 155 plus angle OBC is equal to 180. So angle OBC will be equal to 180 minus 155, which is equal to how much? 25 degrees. So OBC is nothing but DBC or CBD. Yeah, that is what we have to find. So this is angle CBD, 25 degrees. Please note it down everyone. तुम लोग का ज्योमेट्री तो खराब है. आई एम श्योर यू वोंट बी एबल टू राइट ऑल्सो. तो लिख लो इसको अच्छे से. पहले मैंने क्या किया? फर्स्ट आई टुक ट्राइंगल AOB. मैंने उसमें COD ढूंढा, सॉरी AOB ढूंढा 65 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट. उसके बाद मैंने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एंगल ABD ढूंढा 80 डिग्री. फिर एंगल ABD को BDC से इक्वल कर दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फिर एंगल ACB को DAC से इक्वल कर दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन
I found angle COB by linear pair. फिर ट्राइंगल COB में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की, यहाँ पे रीज़न लिखना। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आई फाउंड एंगल CBD, दैट इज़ द मिसिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल COB 25 डिग्री। सो ये चारों फाइनल आंसर्स तुम्हें मिल गए। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आई एम सॉरी, बीच में कहीं एक आंसर आया था, ये वाला शायद, मे बी, एंड दिस आंसर। You desperately need a crash course in lines and angles. इसकी तो मैं अलग से टेस्ट लूँगा, लाइन्स एंड एंगल्स की। सो सिर्फ आंसर ढूंढना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं वैसे लिखना भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू डू नॉट फॉलो दी स्टेप्स, अगर तुम ऐसे ही लिख रहे हो आंसर्स, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ओके, लेट्स गो अहेड। The ratio of two sides of a parallelogram is 4:3. If the perimeter is 56, find the length of its sides. Very easy question. Okay, suppose A, B, C, D is your parallelogram, and the ratio of two sides of this parallelogram is 4:3. So let AB is equal to 4x and BC is equal to 3x सेंटीमीटर, राइट? पेरीमीटर दिया है। What is perimeter? What is perimeter? What is meaning of perimeter? Perimeter का meaning क्या होता है? The boundary guard. The total length of the boundary. Correct. Total length of the boundary is perimeter. Okay. So how do we solve this? दो साइड्स तो मिसिंग है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को 56 से इक्वेट करना है हमें। हाउ डू वी फाइंड AD एंड DC? कैन एनीवन टेल मी? यस सिद्धार्थ। So 4x plus 3x is equal to 56. नो, यू आर रॉन्ग सिद्धार्थ। शुभ, कैन यू टेल मी हाउ मच इज AD? AD So 4x divided by 5. नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है तू। सिद्धार्थ, so AD will be 3x. वेरी गुड। वाई? So because it is parallel and AD will be equal to BC. I'm sorry, मैंने गलत लिखा। AD will be equal to BC. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. AD will be equal to BC. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. ठीक है,
Can anyone tell me how much will be CD? CD? तनिष तू भी बता सकता है. 4x. Yes. So DC or CD will be equal to AB, which will be 4x. Same reason, opposite sides of parallelogram. So therefore, AB plus BC plus CD plus AB is equal to 56 because that's the perimeter. So 4x plus 3x plus 4x plus 3x is equal to 56. So 14x is equal to 56. So x is equal to 56 divided by 14. So x is equal to 4. So AB is equal to CD, which is equal to 4x. That will be 4 into 14, which is 56 centimeter. And AD is equal to BC is equal to 3x, which is 3 into 14, which is 42 centimeter. Hey, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. x की वैल्यू 4 है, मैं क्या कर रहा हूँ? I have to multiply by 4. x की वैल्यू 4 है. So AB and CD are 4x, that is 4 times 4, which is 16 centimeter, and AD and BC are 3x, which is 3 times 4, which is 12 centimeter. इजी था ना ये. एंगल्स में ही प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को. साइड्स वाला इजी था. चलो नेक्स्ट. ओके, रेक्टेंगल. वाओ. द लेंथ ऑफ a rectangle is 8 centimeter and each of its diagonal is 10 centimeter. Find the breadth. बहुत इजी है. समथिंग कॉल्ड पाइथागोरस थियरम. किसी ने सुना है क्या पाइथागोरस थियरम? सिर्फ तनुष ने सुना है. ओह, आरवी ने भी सुना है. वेरी गुड, वेरी गुड. आरवी, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू व्हाट इज पाइथागोरस थियरम. सुना है लेकिन याद नहीं है, ऐसा है क्या? किसी और को याद है पाइथागोरस थियरम? Okay, Tanush, please apply Pythagoras theorem in triangle ABC. And why can we apply Pythagoras theorem in triangle ABC? That also you tell me. Sir, because triangle ABC is a right angled triangle. Very good. So Pythagoras theorem can be applied in any right angle triangle. In a right angled triangle, the square, yeah, you tell me, Tanush, you tell me. In a right angle triangle, what is the relation between the sides? What is Pythagoras theorem? Sorry? A square plus B square is equals to C square. मुझे तो ए बी सी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है. Sir, in the sense line AB, 8 square, like 8 centimeter. हाँ हाँ. 8 square plus line CB square is equals to 10 square. ओके, इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. क्या ऐसे बोलूँ मैं? परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको बोलते हैं बेस. और ये जो लाइन है 90 डिग्री के एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस.
सो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट? क्यों है ये ऐसा? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी angle ABC is equal to 90 degree, angle ABC is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8th में इंट्रोड्यूस किया है मैंने, आगे क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th, हर जगह आएगी ये थियरम, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। So it is not a thing to be missed or to be forgotten. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is 10 square, AB square is 8 square, BC square we do not know, हमें नहीं पता है BC square, BC breadth है ना, ठीक है। So 10 square 100 है, इज इक्वल टू 64 प्लस बी सी स्क्वेयर। 64 को ये साइड लेके माइनस कर देंगे। तुम लोग को दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन हर जगह आ रहा है यहाँ पे, एवरीवेयर यू आर ट्रांसपोजिंग, चेंजिंग द साइन। सो इफ यू थिंक ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दैट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, सो यू कैनॉट टेक इट लाइटली। सो 36, 100 माइनस 64, 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। इसके बाद तुम लिखोगे स्क्वेयर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूटिंग बोथ साइड्स। सो बी सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, सो बी सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी सी विल बी 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ मिल गई तुम्हें 6 सेंटीमीटर। ओके लिखो लिखो, आराम से लिखो, अच्छे से लिखो। कुछ कम पड़ा तो मंगाया तो जीना से नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रिजान का वो 4 लाइन वाला वो, फिर उसके लिए फाइल मंगानी होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो हम लोग पूरा सारा ये कर सकते हैं। तो उसको बोलना कि वो भी देखेगा। ओके डन, चलो लेट्स गो। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, रोम्बस है रोम्बस। हाउ मेनी क्वेश्चंस आफ्टर दिस यार, आई एम टायर्ड। ओह लास्ट क्वेश्चन, वी आर ऑल टायर्ड। ओके
So in this figure, ABCD is a rhombus whose diagonals AC and BD intersect at point O. ठीक है, साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. डायगोनल BD दिया है 16 सेंटीमीटर. कितने फाइल्स मंगा रही है? नहीं, ऐसे एक मत कर, 3 मंगा एटलीस्ट. हाँ, छोटे मीडियम साइज. ओके, so diagonal AB, sorry, side AB is 10 centimeter and diagonal BD is 16 centimeter. Okay, find the length of diagonal AC. Very interesting question. Let me zoom in over here. चलो पूछते हैं तुम लोगों से, पैरेलल, सॉरी, रोम्बस की प्रॉपर्टी कितनों को याद है? कैन एनीवन टेल मी प्रॉपर्टीज related to diagonals of rhombus? डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की. तुम लोग को मैं बोलता हूँ लर्न करो लर्न करो, तुम लोग मेरे को घास नहीं डालते ना. यस सिद्धार्थ. Sir, it makes 90 degree Diagonals bisect each other at right angles. at 90 degree. Diagonals bisect each other at right angles, मतलब 90 डिग्री. ओके, तो ये जो दो डायगोनल दोनों इक्वल नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब है AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO विल बी इक्वल टू OD. OD विल बी इक्वल टू OB. ठीक है. अच्छा, वी नो दैट डायगोनल BD इज 16 सेंटीमीटर. डायगोनल BD 16 है. कैन एनीवन टेल मी if diagonal BD is 16, how much will be OB and how much will be OD? If diagonal BD पूरा 16 है तो OB और OD कितना होगा? Very good, it will be 8 centimeter each. ठीक है. Okay, we have to find diagonal AC. Now the idea is to see, because we know what is OB, right? We know what is AB, and we have to find this side OA in triangle OAB. Once we get OA, if we double it we get AC. So ये जो ट्राइंगल है AOB एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है. जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द 90 डिग्री एंगल AOB. ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से आ गई पाइथागोरस थ्योरम. Who can help me apply Pythagoras theorem over here? Please help me apply Pythagoras theorem. अभी मैंने सिखाया तुम्हें इसे प्रीवियस क्वेश्चन में. कम ऑन, नींद से जागो. राशि कैन हेल्प मी. राशि, यस राशि. AB square plus AO square plus BO square. क्या बोल रही है राशि? सबको प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या? बाबा जी का टुल्लू. Sorry, AB square is equal to AO square plus BO square. वेरी गुड. AB square is equal to AO square plus BO square. Very good. Hi. She's gone. She's coming. You can sit. No problem. AB square is equal to AO square plus BO square. AB square is 10 square. AO square we do not know. And BO square is 8 square. Right? 10 square is 100. AO square we do not know.
8 स्क्वायर इज 64, 64 को वो साइड शिफ्ट करो, 100 माइनस 64 इज AO स्क्वायर, AO स्क्वायर इज 36, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, सेम जैसे पहले किया था, एग्जैक्टली सेम, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो AO कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 36, सो AO विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AO मिल गया. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू फाइंड AC? हाउ डू वी फाइंड AC? Sir, AC is equals to 12 as AO and OC will be. So AC is 2 times AO, as O is the midpoint of AC. So 2 into 6, which is 12 centimeter. Which is 12 centimeter. Correct? So the other diagonal is 12 centimeter. We used Pythagoras theorem and we used the property of rhombus that the diagonals of rhombus bisect each other. ठीक है? At 90 degree. The diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Okay. Done? ठीक है, we are also done. A small piece of advice for all of you. तुम लोग की ज्योमेट्री बहुत गंदी है भाई. किसी ने ना तुम लोग को सिखाने के लिए पेन लिया ही नहीं है. सब लोग ने फॉर्मेलिटी की है तुम लोग के साथ. तुम लोग के साथ धोखा हुआ है, धोखा. मैथ्स के नाम पे धोखा हुआ है. या तो तुमने धोखा किया है तुम्हारे टीचर के साथ, या तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारा काटा है, बड़ा वाला. ठीक है, तो आई एम रियली अपसेट अबाउट दिस, एंड let me just stop the recording and talk with you. This chapter is over, guys. Congratulations. You successfully completed this chapter. Actually, congratulations to me, not to you, because तुम्हारा homework अभी भी बचा है.